नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल कुमार चंद्रकिला, एक्स ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, कमिश्निंग क्रू ऑफ एसएसबी कोलकाता एंड एक्स 12 एसएसबी बैंगलोर। टुडे आई हैव विद मी ललितेश शर्मा, मेरे बैच 22 का स्टूडेंट, who has gotten recommended in his fourth attempt. So yeah, welcome Litesh. Thank you, sir. Good evening, sir. Yeah, yeah. So जो previous attempts थे एसएसबी के ललितेश के, I think he's appeared thrice. One was TES 45. Then second time he appeared for NDA 147 and then SSC Tech 62. And उसके बाद में finally he got recommended in his fourth attempt from 33 SSB Bhopal, right? Litesh? Yes, sir. Okay. So that was for which entry? 33 SSB? It was it was for SSC Navy Tech after graduation. SSC Navy Tech. So yeah, I mean, why don't you introduce yourself to the viewers, Lalitesh? All yours. The platform is all yours. My name is Lalitesh, and I'm from Mumbai. And recently, I've completed my semester 7 and ongoing my semester 8 and in my pre-final year. And yes, I just went to 33 SS Bhopal and got recommended in my fourth attempt. And that's it about me. So why don't you speak more about your parents, your family background? Yeah. So my father is currently serving in Indian Navy. He is Master Chief Mech, and in my family, I have my mother, who is a homemaker. She's a homemaker, and I have my little brother. He's currently studying in class 9. So, And where did you complete your schooling? And where did you study engineering? sir, currently I'm doing my engineering from KG Soma College of Engineering, which is in here in Mumbai, and I completed my both 10th and 12th from NCS Bombay. Okay. Okay. So so when did you decide that कि हाँ नेवी ज्वाइन करना है? एंड जब ये फोर्सेस के बारे में पता चला, ऑफ कोर्स आई मीन यू आर अ ब्रैट, आपके पिताजी फौज में हैं। सो ऐसा कौन सा क्षण आया कि हाँ मतलब फौज में जाना है, ऑफिसर बनना है? और तब एसएसबी के बारे में क्या पता था आपको? सर, स्टार्टिंग में आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एसएसबी, बट यस आई न्यू कि हाँ एक फौज में एक ऑफिसर बन सकते हैं और जवान बन सकते हैं। सो जवान बनने के लिए ये एंट्री है, एंड फौज बनने के लिए ये सब एंट्रीज होती है। सो व्हेन आई केम इन 11th, देन सर ड्यूरिंग दैट आई यूज्ड टू सेल। मैं सेलिंग के स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा था उस समय। यूज्ड टू सेल एट नेशनल लेवल। उसके बाद धीरे धीरे वो छूटा, बिकॉज एजुकेशन आई यूज टू मतलब फोकस मोर, बिकॉज मैं 12th में भी आ गया था। देन माई फ्रेंड सर्कल, वो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेटली फ्रेंड सर्कल ऐसा था, सो वी यूज टू प्रिपेयर टुगेदर, एंड देन वो माहौल ऐसा बन गया कि देन वी डिसाइडेड कि, एंड मेरा भी फिर वो एम बन गया कि आफ्टर 12th आई जस्ट वांट टू गेट इनटू एनडीए एंड आई वांट टू डू दिस, एंड स्पेशली आई जस्ट वांटेड टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एट दैट टाइम। So we prepared together. Many of them were able to clear it, and now they're in academy. Unfortunately, नहीं हुआ. But during my 12th, I went for TS 45. That was again in Bhopal, in 20 SSB Bhopal. And after that, for NDA 147, which was into AFSB Mysore. Unfortunately, in those two attempts, मैं conference out हो गया, recommend नहीं हुआ. But at that moment, I have completed my engineering and class 12 and also given MHCET. So at that time, I thought कि नहीं, I have to do something, because, and I also explored कि engineering के बाद I have many options. So engineering is the best degree that I can do. And also I had PCMB as my subject in class 11 12, and I also had a sound background, mathematics or biology में, and physics में भी also. So I thought कि नहीं, engineering साथ जाए. Then मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ले लिया, इधर एडमिशन ले लिया बॉम्बे में, के जे सोमैया में, एंड माई ब्रांच वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो आई वॉज वेरी न्यूट्रल अबाउट दिस ब्रांच, एंड ऑल्सो वेरी, कि पहले से ही था कि ये ब्रांच, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, एंड इफ आई टेक दिस ब्रांच, द ऑप्शंस जो मेरे पास ग्रेजुएशन के बाद है वो ज़्यादा खुल जाने चाहिए, बिकॉज आई रियलाइज दिस मोमेंट कि एनडीए के समय दिस एसएसबी अटेम्प्ट्स आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी प्रेशियस। बहुत बार ये होता है कि आप जाते रहते हो, कभी होता है नहीं होता, कभी आप स्क्रीन आउट हो रहे हो, कभी आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो।
वो अटेम्प्ट्स कम होते रहते हैं, बट इफ यू हैव अटेम्प्ट ज्यादा तो एक बैक ऑफ माइंड वो रहता है। बट यस, अब एक ये भी चीज होना चाहिए कि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है, तो मैं इसको वैसे ही लेके चलता हूँ। सो इसलिए इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। एंड देन आफ्टर दैट इंजीनियरिंग, आई व्हेन आई वाज इन 7th सेमेस्टर, तो मैं इसके लिए गया था SSC 62 के लिए, जालंधर में। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन आई वाज नॉट रिकमेंडेड देयर कॉन्फ्रेंस आउट। फिर यहाँ पे आया, फिर देन आई अप्लाइड फॉर दिस, एंड ड्यूरिंग दिस आई गॉट टू नो अबाउट यू इन जनवरी। जनवरी में आपके बारे में पता चला सर कैसे पता कि यू चला रन। था? हाँ, सो आई यूज टू, मतलब मैं जितने भी मेजर डिफेंस चैनल्स हैं, मेरे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, सो आई एम देयर ऑन टेलीग्राम, मैं फॉलो देम ऑन यूट्यूब। सो वहाँ पे एंड यूट्यूब पे फिर अपने आप ही एक बार रिकमेंडेशन आया अबाउट योर चैनल, अबाउट योर वीडियो। सो हम्म। फिर मैंने वो खोला, मैंने देखा, एंड आई जस्ट सॉ कि यू आर जस्ट स्टार्टिंग, यू आर जस्ट बिगनिंग, एंड यू आर, बिकॉज आप जस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आए हो, and your responses and your way of conducting, I found it कि I first of all मैं उससे connect हुआ, and I found it कि it was very genuine and something which could be done. फिर उसके बाद देन आई कॉन्टैक्टेड हीमा मैम, देन आई जस्ट गॉट अ सपोर्ट कि नहीं, यस, कहीं ना कहीं व्हेन आई वुड बी ज्वाइनिंग यू, आई वुड बी गेटिंग अ बैक सपोर्ट ऑल्सो, कौन सपोर्ट। जब फिर ज्वाइन किया आपको, देन आई गॉट टू नो, एंड ऑल्सो मतलब समटाइम इट हैपेंस कि यू नो कि आप कर सकते हो, बट व्हेन सम अदर पर्सन शोज बिलीव इन यू, तो एक वो बूस्ट मिल जाता है, एंड यू हैव दैट क्लियरिटी इन माइंड कि नहीं, हो जाएगा। कहीं ना कहीं खुद पे सेल्फ डाउट तो आता ही है, बट देन सम अदर वन, मतलब जो सामने वाला आपको भरोसा करता है, तो यू गेट दैट बूस्ट। तो फिर उस वजह से देन आई जॉइंड, एंड इट हेल्प मी, जो आपने मुझे सपोर्ट किया था। दैट्स व्हाई आई जॉइंड इन, जॉइंड इन फेब्रवरी। फेब्रवरी में हुआ था, देन इन 28th February आई हैड माय SSB इन भोपाल, एंड देन आई सक्सेसफुली गॉट recommended. So, thank you so much for your kind words, yeah, Ritesh. But yeah, we'd like to know ki, see, you went for three SSB, so you've been conference out, right? And then you joined my coaching, which is an online coaching. There's no physical GTO ground as such. So you spend that ड्यूरेशन ऑफ 12 days with me. पहले 12 दिन की क्लास चलती थी, अब और कंसाइज करके मैंने थोड़ा और कम कर दिया। बट या इन डेप्थ है, कंटेंट सेम है, खाली डिलीवरी थोड़ा बहुत चेंज किया इधर उधर। सो यू जस्ट स्पेंड दैट 12 days एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट यू वेंट टू गिव द एसएसबी। तो ऐसा क्या डिफरेंस था? व्हाई डोंट यू वॉक अस थ्रू योर दिस अटेम्प्ट इन विच यू गॉट रिकमेंडेड, कि ऐसा क्या नया सीखने को मिला मेरे साथ रह के विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ एनी जीटीओ ग्राउंड? सो ऐसा क्या नया हुआ दैट कि यू वर लाइक कि हाँ मतलब मैं, मुझे पता है कि मैं रिकमेंड होने वाला हूँ? यस, ऐसा व्हाट एग्जैक्टली, ऐसा क्या चेंज आया मेरे साथ रह के? सर, सो सर, इनिशियली जब मेरे 3 अटेम्प्ट्स हुए थे, देन आई न्यू की फॉर फॉर SSB में जो फर्स्ट स्टेज है, आई वाज एबल टू क्लियर इट, बिकॉज उसमें आई वाज गिविंग माय बेस्ट इन ऑल दीज 3 असेसमेंट जो होते थे। उसमें वो चाहे वायर हो, ये चाहे स्टोरी राइटिंग, स्टोरी नरेशन, एंड देन ग्रुप डिस्कशन। तो उसमें मैं अपना बेस्ट देता था ना, वो न्यू कि आई एम, इफ आई एम एबल टू क्लियर, एक स्टेज क्लियर कर रहा हूँ मेरा, तो कहीं ना कहीं सेकंड स्टेज में कुछ ना कुछ तो चीज है जो कि आई एम नॉट एबल, दैट्स वाई उस चीज की वजह से मैं बैक ऑफ हो रहा हूँ प्रोसेस में। सो जैसे अगर SSB के डायमेंशन है, तो मैं उस डायमेंशन में फिट नहीं बैठ रहा, कहीं ना कहीं वो सम सेंटीमीटर और मीटर का जो कुछ चीज है जो मिसिंग है मुझ में, या फिर मुझे वो चीज इंप्रूव करनी है अपने अंदर। सो मतलब ये 3rd अटेम्प्ट हो चुका है, सो आई न्यू कि नहीं, मेरे बैक ऑफ माई माइंड था कि ये जो मेरा अटेम्प्ट है, इसको मुझे फाइनल अटेम्प्ट कंसिडर करके देना है। सो आई वांट टू टेक सम काइंड ऑफ गाइडेंस, सो इसलिए मैं आपके पास हूँ। देन व्हेन आई जॉइंड यू सर, तो मुझे पता चला कि स्पेशली फॉर, इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस, फ्रॉम द प्रोसेस, फॉर फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, आई गॉट टू नो कि मुझे अपने बारे में ही जानना है। बिकॉज CIQ जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वो फ्रेम होते हैं, वो मेरी लाइफ के बारे में है, एंड व्हाट आई राइट इन माय PIQ। सो अगर मुझे मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो इंटरव्यूअर को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि PIQ में मैं ही भर रहा हूँ। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि नोइंग अबाउट योर सेल्फ, पास्ट में आपने क्या किया, एंड व्हाट इज यू आर डूइंग करेंटली टू परस्यू और अचीव दैट गोल। सो वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से।
So coming on psych perspective मुझे पता चला पर्सनली कि इन सम ऑफ द स्टोरीज, स्पेशली टैट में, आई यूज टू डिस्क्राइब द स्टोरीज। मतलब सब कॉन्शियसली जब उस टाइम फ्रेम में मैं लिखता था, जब मैंने प्रैक्टिस सेट दिया, मैंने असेसमेंट लिया, तब मुझे पता चला कि अच्छा मैं स्टोरीज को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सो आई डिड, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। तो इसके लिए मुझे वो नेचुरली वो थॉट प्रोसेस आए। उसके लिए जैसे हम प्रैक्टिस करते थे क्लास सेशंस में, कि कोई भी एक पिक्चर लो, उसके बारे में सोचो, उसको 3 पार्ट में ब्रेक करो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या हो सकता है, and वैसे फ्रेम करो उसको, उस स्टोरी को। एंड स्पेशली वो पिक्चर ऐसे ऑनलाइन, rather than taking ऑनलाइन पिक्चर, टेक सम काइंड ऑफ रियल पिक्चर। लाइक लेट सपोज कोई ऐसे मुंबई में कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है, बीएमसी के वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये पिक्चर क्लिक कर लिया। अब इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस हुआ होगा कि वहां पे कुछ इश्यू आया होगा, बीएमसी ने नोटिस किया, देन वो ये सर्टेन स्टेप्स लिए, ये आउटकम हुआ, फिर लोगों को ट्रैफिक ये सब क्लियर हो। सो इस टाइप में जो रियल लाइफ पिक्चर के प्रैक्टिस हम डेली करते थे, ये वीकली हम लोग करते थे, एंड उसके बाद उसका हम डिस्कशन भी करते थे, आप हमें बताते थे कि ये इसमें है। तो दैट, आई थिंक दैट हेल्प मी इन माई साइक। एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो कि मेरा टैट, sorry, VAT, SRT, and SD was okay. So I didn't want to work more upon that, but I rather मुझे टैट के ऊपर ज्यादा काम करना था. So that was one key. And coming to GTO, सब again in previous 3 attempts में I got to know कि नहीं, मुझे GTO ग्राउंड में ऐसा डेडिकेटेड नहीं चाहिए कि मैं जहाँ जाऊँ उधर मैं प्रैक्टिस करूँ और उससे कुछ फायदा हो। rather than GTO में what हर एक टास्क में GTO हमारे अंदर क्या देख रहा है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ही इज ट्राइंग टू सी इन मी पर्सनली, एंड मुझे क्या परफॉर्म करना है, and मुझे क्या वो वैल्यूज आउट दिखाना है उस प्रोसेस में। बिकॉज ये प्रोसेस होता है अराउंड 13 to 14 आवर्स का, टोटल मिला के 5 दिन में। तो उसी जो 13 14 आवर्स है, उसमें मुझे अपना बेस्ट देना है, परफॉर्मेंस देना है, और जो वैल्यूज मुझे अंदर है वो मुझे रिफ्लेक्ट करना है पॉजिटिवली। सो वो, तो अगेन उसमें भी अगेन जैसा आपने बताया, सब ब्रेविटी इज द की। बिकॉज हर एक टास्क में से, ग्रुप टास्क में, क्योंकि ग्रुप टास्क है मैं ग्रुप के साथ, बाकी साइक और इंडिविजुअल में तो मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। बट वेन आई एम विद द ग्रुप, सो जब ग्रुप में जब डिस्कशन होता है, तो उसमें मल्टीपल चांसेस नहीं मिलते हैं। इट अप्लाइज टू द सेम फॉर फर्स्ट स्टेज के लिए, या फिर जब जीटीओ के जितने भी ग्रुप टास्क होते हैं। तो जब कभी भी मेरे पास जो आइडिया था, आई केप्ट इन माई माइंड की ब्रेविटी इज द की, तो मैं अपना पहले से ही वो फ्रेम करके, और जब मुझे मौका मिलता था, 2 to 3 4 मौके मिलते थे, उसमें ही मैं अपना आइडिया पुट फॉरवर्ड करता था। एंड पुटिंग फॉरवर्ड आइडिया करना एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मोर इम्पॉर्टेंट बट आई गॉट टू नो कि उसके साथ आपका सोल्यूशन कैसे बैठ रहा है, एंड ग्रुप में प्रीवियसली क्या चल रहा था, एंड आपने उसको कैसे ग्रुप को मूव फॉरवर्ड किया आपके आइडिया से। क्या है मतलब, एज इन की व्हेन आई गॉट टू नो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रुप को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा एंड मैं अपना आइडिया प्रपोज करके वो कर रहा हूँ। बट यस, जीटीओ इज ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव इन द ग्रुप, एंड हाउ यू मूव, ट्राई टू मूव टेक ग्रुप फॉरवर्ड, एंड कैसे वो कोऑर्डिनेट करते हो। सो ये चीज मुझे पता चली, एंड आई गॉट टू नो कि जीटीओ में जब कोई भी ब्रिजिंग करते हैं, उसके लिए क्या उसके साइड ये है, हमें क्या रूल फॉलो करने हैं फिजिक्स के, क्योंकि बहुत बेसिक फिजिक्स के रूल्स लगते हैं। सो अगर वो हम दिमाग में रखें, तो आगे फिर कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए उसमें हमें मतलब टाइम, अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस देंगे, तो अगर हम वो फिजिक्स के लॉज को बेस लेके, तो वो आराम से स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि इसके लिए हमें एक वी रिक्वायर सर्टेन ग्राउंड जहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना है। इट वुड वर्क फॉर सम कैंडिडेट्स, बट मेरे लिए इट डिडंट वर्क इट, बिकॉज सीइंग माय पास्ट 3 परफॉर्मेंस ऑफ माय 3 टास्क, 3 SSBs, तो इसलिए फिर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगा। सो दैट व्हाई इट हेल्प मी अलॉट। Okay. So now let's get into the more specifics. Uh, so let's say you've given the three SSBs pehle, and then you came to me, and then you went to give this SSB Navy Tech. So let's say when you appeared for group situational task, GST के लिए गए आप, GTO के लिए गए, तो ऐसा क्या हुआ at 33 SSB Bhopal? So compare it with what you have done in the past, and then you came and learned with me, and then what did you do? So why don't you walk us through your experiences in the GTO ground? Yeah. So I would just like to add a walkthrough of 5 day process, and Yeah, it yeah. would just include also. So for the first day, जब हम यहाँ पे गए, so I had this I had this thought कि नहीं, इस बार फर्स्ट स्टेज तो हो जाएगा, बिकॉज
मेरा पहले भी हो चुका है। सो जो पहले अप्रोच था, सिंपल एंड स्वीट जो अप्रोच है, जो वो रखूँ मैं। उसमें इंक्लूडेड था कि जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो मैं ध्यान से सुनूं, एंड वही इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो करूं, उसमें ज़्यादा प्लस माइनस ना करूं, बिकॉज दैट ऑल्सो हैज़ एन इम्प्रेशन ऑन द असेसर्स। सो एंड बिफोर गोइंग, मैंने अपने करंट अफेयर्स थोड़े अच्छे से ब्रशअप किए, एंड थोड़े टाइट एंड एसआरटीज एंड साइक का पूरा प्रैक्टिस किया मैंने। जब फर्स्ट डे हुआ रिपोर्टिंग, फर्स्ट डे अराउंड 148 रिपोर्टिंग था। देन उसके बाद मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखा अपना परफॉर्मेंस एंड अपना ये प्रोसेस के रिगार्डिंग, एंड मैंने वैसे ही परफॉर्म किया जैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट में परफॉर्म किए थे फॉर द फर्स्ट डे। सक्सेसफुल, लकीली आई गॉट थ्रू इन, एंड 24 स्क्रीनिंग हुए थे। उसके बाद सर देन डे टू ऑफ साइक शुरू हुआ। तो साइक में जो मेरे रिव्यू से मुझे पॉइंट मिले थे आफ्टर द असेसमेंट, सो वो मैंने ध्यान में रखा, एंड आई ट्राइड कि मैं टैट का स्टोरीज जो है वो आई डोंट डिस्क्राइब दो स्टोरीज बट रेदर राइट अ स्टोरी ऑन दैट इन द गिवन फॉर्मेट। जो हमें ब्रीफिंग में भी बताया जाता है ये फॉर्मेट कि फॉर गिवन स्टोरी यू शुड राइट अबाउट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो वही मैंने चीज ध्यान में रखी, एंड आई हैड डन द प्रैक्टिस, सो इसलिए मुझे टाइम खत्म होने से पहले ही मैं आई वॉज एबल टू फिनिश ऑल द टास्क। So psych went very good, and after that, day two, day three, sorry, day three, we had GTO one. So in GTO one again, I had this in back of my mind, because some of the times what happened कि मैं ग्रुप में जब रहता हूँ, so I realized कि मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी नर्वस हो जाता हूँ। So because of that nervousness, I'm not able to perform. So how should I perform? वो अपना 100% नहीं दे पाता। सो आई केप्ट इन दिस माइंड की नर्वस नहीं होना है, तो चिल करना है, मतलब मैं ब्रीथ आउट करूँ, चिल करूँ, एंड जो कुछ होगा देखा जाएगा। सो इन फर्स्ट GTO डे वन, जितने भी ग्रुप टास्क थे, GP था, एंड जितने भी ग्रुप टास्क के PGT था, तो उसमें मैंने टास्क किसी के ऊपर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया कि चढ़ा नहीं मैं किसी के ऊपर, सबको मैंने आई गिव रूम टू एवरीवन। एंड जब मुझे रूम मिला, सो आई केप्ट ब्रेविटी इन माई माइंड। तो मैंने अपने थॉट प्रोसेस पहले से फ्रेम किए थे, एंड ग्रुप्स का सुना था कि ग्रुप में अच्छा ये चल रहा है, सो यू जस्ट गॉट टू नो कि आपको ये पॉइंट पुट फुट फॉरवर्ड करना है, ग्रुप इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो यू ऑटोमेटिकली गेट दोस आइडियाज। सो जब विंडो में जब मुझे मिला था टाइम, तो तब मैंने वो अपने थॉट प्रोसेस पुट फॉरवर्ड किए, एंड विच वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाय द ग्रुप। उसके बाद सर मेरा इंटरव्यू उस दिन नहीं हुआ, एंड देन आफ्टर एट द एंड ऑफ द GTO वन डे वन, आई गॉट टू नो कि मेरा अगले दिन होगा इंटरव्यू आफ्टर लंच। सो डे टू स्टार्ट हुआ, GTO स्टार्ट हुआ, GTO डे टू स्टार्ट हुआ। तो फिर मैंने अपने वही अगेन वही मैंने फॉलो किया, नर्वस नहीं होना है, सबको मौका देना है, सबको रूम देना है, एंड खुद भी जो फिर उसके बाद मेजोरिटी कमांड टास्क थे, इंडिविजुअल टास्क था। तो उसमें स्पेशली कमिंग टू द इंडिविजुअल टास्क, तो भोपाल में कैसा था सर, स्पेशली फॉर द एनुअल बोर्ड, वो पहले से ही थोड़ा सिंक्रनाइज था, सो टास्क के अरेंजमेंट। सो आई मेड श्योर, जो मुझे पता चला था कि बिकॉज जो टास्क इंडिविजुअल टास्क के जो आप नेविगेट कैसे करते हो टास्क के थ्रू, बिकॉज यू नीड टू हैव मैक्सिमम स्कोरिंग ऑल्सो, तो अगर आप सिस्टमेटिकली करोगे तो यू गेट मैक्सिमम स्कोरिंग। तो वो चीज़ मैंने फॉलो की उसमें। कमांड टास्क में भी सर ऐसा हुआ था, जब कमांड टास्क मुझे बुलाया एंड हैड डिस्कशन थोड़ा बहुत हुआ हमारा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नेवी, एंड प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या किए। सो ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू रिलैक्स मी। उसके बाद टास्क स्टार्ट हुआ, देन कॉल्ड माय कोऑर्डिनेटर्स। तो टास्क में सर 3 वेज से जाने के। तो मैं फर्स्ट स्टेज क्लियर किया मैंने टास्क का। तो उसके बाद सेकंड स्टेज नहीं मिल रहा था, सो आई वाज टेकिंग सम बिट ऑफ टाइम, तो 5 मिनट हो गए खड़े खड़े। सो देन मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, सेकंड वाले से जो मिडिल जो टास्क है, मिडिल जो टास्क रहते हैं, जैसे 1 2 3 टास्क रहते हैं, तो बीच वाला जो टास्क है वो इजीली हो सकता है। तो वापस स्टार्ट लाइन में गया, तो GTO ने पूछा, अच्छा क्या करना चाहते हो, इधर से नहीं होगा क्या? नहीं सर, ये यहाँ से नहीं हो पाएगा, बट आई हैव एन आइडिया कि मिडिल वाले से हो जाएगा। देन ही सेड कि ठीक है चलो, गो विद इट। तो फिर मैंने वो फर्स्ट, उसमें भी फर्स्ट सेकंड 3 स्टेजेस होते हैं, तो मैं थर्ड स्टेज तक आया। देन ही सेड कि अच्छा, तो अभी तुम जो 2 बंदे अब आगे आ जाएंगे, तो एक बंदा पीछे बचेगा, बिकॉज वी हैड 3 पीपल, तो उसको कैसे निकालोगे? तो उसको निकाला, फिर उसके बाद सर को वो सॉल्व करके दिखाया। सो बेसिकली वो बहुत आसानी से हो गया था, बट यस, इन आई वाज स्टक इन द इनिशियल मोमेंट में, बट यस देन आई ट्राई टू काम माई सेल्फ, बिकॉज
वो अगर उस समय मुझे अगर नर्वसनेस स्ट्राइक होता है तो मैं आइडियाज नहीं आएंगे, एंड देन आई वाज नॉट एबल टू फॉर्म, बिकॉज सो वो चीज मैंने दिमाग में रखा, तो ये हो गया। देन आफ्टर ये खत्म होने के बाद वी हैड दिस लंच, तो लंच मैं जल्दी से लंच करके आया। देन आफ्टर लंच हमें ब्रीफिंग में बताया था कि यू नीड टू गेट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ फाइल, जितने भी आप लाए थे, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर द इंटरव्यू। तो सर मैं तो फॉर्मल ड्रेस पहन के आई वाज वेरी काम एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है मैं चला जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे वेटिंग हॉल में जाके मैं बैठ गया। देन आई एम थिंकिंग कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। देन आई वेंट इन, प्रेसिडेंट के साथ था मेरा इंटरव्यू। तो जैसे ही गया सर पूछते हैं, हाय हेल्तेश, वेर इज योर फाइल? सो उस समय आई वाज लाइक कि गेम तो ओवर हो गया, स्टार्ट होने से पहले ही ओवर हो गया। देन आई हैंडल इट, मैंने कहा कि सर नहीं, लंच था, आई जस्ट केम बैक रशिंग, सो आई एम वेरी सॉरी, सो कैन आई जस्ट गेट इट नाउ? देन ही सेड कि नहीं ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं। देन आई सैट एंड फिर जितने भी सीए के क्वेश्चंस थे मैंने वो ध्यान से सुने, एंड देन आई गिव द आंसर्स अप्रोप्रिएटली। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारे अंदर तीन पॉजिटिव्स क्या हैं, तीन नेगेटिव्स क्या हैं? देन आई सेड अब तो मैं तो दो ही का प्रिपेयर कर गया था, बिकॉज इतना सोचा नहीं था कि इतना होगा। बिकॉज एसएसबी में भी क्या हुआ, जब एसएसबी प्रोसेस हुआ तो उससे पहले मैंने कभी भी ऐसा होता नहीं था, इन फ्रेंड सर्कल ऑल्सो मेजोरिटी टाइम ऐसा नहीं होता था कि हम एक दूसरे को बोलें कि यू हैव दिस शॉर्ट कमिंग, ये चीज़ सही नहीं लग रही है तो इसको इम्प्रूव कर ले। तो ये था ही नहीं कभी हमारे ग्रुप फ्रेंड सर्कल में, and कभी मैंने ऐसे एनकाउंटर नहीं किया था। तो जब मैं एसएसबी प्रोसेस के अंदर गया, देन आई गॉट टू नो कि जुहारी विंडो कुछ होता है, Q1 Q2 Q3 Q4 रीजन्स होते हैं, उससे आपको अपनी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। तो उसके बाद जब मैंने एसेस किया तो ठीक है, क्योंकि वो एसेस करना है, क्वालिटीज निकालना, वो भी एक मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क था, वो भी हो नहीं रहा था। तो जैसे ही अगेन वो जैसे रिव्यू सिस्टम पे हो, जैसे हम मैं प्रोसेस में था, तो जो मुझे रिव्यूज मिलते थे, जो मुझे मिलते थे कि अच्छा ये आपके अंदर ये शॉर्टकमिंग है, या फिर आपको इस प्रोसेस को इस तरीके से अप्रोच करना, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, तो वो सब चीजें मैंने नोट डाउन की। फिर वही मैंने वो फाइनलाइज किया कि अच्छा ये मेरे अंदर पॉजिटिव्स है, ये मेरे अंदर नेगेटिव्स है, और ये नेगेटिव्स को मुझे ऐसे इंप्रूव करना है। सो अब ट्विस्ट, अब तो हम ऐसे ही करे गए थे कन्वेंशनल, अब सर ने बोला ट्विस्ट है यहाँ पे। तो ट्विस्ट ये था कि बोला कि अच्छा तुम तीन तो बताओ, तीन पॉजिटिव एंड थ्री नेगेटिव्स, प्लस उसके बाद ये बताओ, हर एक को एक्सप्लेन करो एक्सपीरियंस के साथ। सो अब तो ये बहुत, तो मतलब मैं सोच के ही नहीं गया था सर ऐसा क्वेश्चन आएंगे। तो आई टुक माई टाइम, आई केप्ट माई सेल्फ रिलैक्स। तो जितने भी क्वालिटीज थे, थ्री एंड थ्री नेगेटिव थ्री पॉजिटिव, तो वो बताया। जैसे फर्स्ट मैंने बताया मेरे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आई गेट इन टू सिचुएशन वेरी फास्ट, जंप इनटू सिचुएशन वेरी फास्ट, तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। सर ने पूछा एग्जाम्पल बताओ। सो आई टोल्ड कि सर कभी भी जैसे अगर कोई भी चीज चल रहा है, इफ समवन लेट्स सपोज कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट है, एंड समवन वांट्स टू इट, एंड मुझे अगर वो आइडिया अच्छा लगा, तो मैं सबसे पहले मैं जाके अप्रोच करूंगा कि नहीं आई वांट टू ज्वाइन इन। और कभी कभी नेगेटिव इसका ये हो जाता है कि इफ समथिंग इज हैपनिंग इन द ग्रुप एंड आई गेट इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन, तो वो चीज मुझे पता नहीं है सिनेरियो क्या चल रहा है, फिर वो चीज मेरे लिए नेगेटिव हो जाती है कि मैं चल इट्स लाइक कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। सो आई गिव द क्वालिटीज, एंड उसके मैंने एग्जाम्पल्स भी साइमल्टेनियसली, थोड़ा टाइम लिया, सोचा, मैंने प्रोसेस किया, फिर वो दिया। एंड सो दिस ऑल थिंग्स हैपेंड इन इंटरव्यू में, एंड इन कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस से पहले ब्रीफिंग होता है जिन, तो उसमें चाहे कभी प्रेसिडेंट आते हैं या फिर डेप्यूटी प्रेसिडेंट आके ब्रीफिंग देते हैं। तो दिस टाइम डेप्यूटी प्रेसिडेंट केम, ही सेड कि यू हैव टू प्रिपेयर, उसने उन्होंने सामने से बोल दिया था कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टू क्वेश्चंस, आई वुड बी आस्किंग एवरीवन दिस क्वेश्चंस कॉन्फ्रेंस में, कि आपने 5 दिन यू स्टेड हियर, एंड व्हाट यू फाइंड पॉजिटिव इन योरसेल्फ एंड व्हाट शॉर्टकमिंग्स यू फाइंड इन योरसेल्फ। हम्म। सो अच्छा ये एक और चीज नहीं चैलेंजिंग लगी। सो फिर जो टाइम था उसमें मैंने सोचा, मैंने ध्यान दिया कि इन 5 दिन में मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या मुझे चीज सीखने को मिली, क्या क्या नेगेटिव मिली। बिकॉज सर इट्स लाइक कि वेन एवर यू गो टू, मतलब जब कभी भी आप इस प्रोसेस के थ्रू जाते हो, यू फाइंड समथिंग और अदर इन योर सेल्फ, अपने अपने बारे में और जानने को मिलता है कि अच्छा। सो फिर जब मैं गया अंदर, सो देन आई प्रिपेयर्ड, मतलब उस समय पहले से मैं प्रिपेयर था इन क्वेश्चंस के लिए। सो आई मतलब मैंने वो बताया कि सर सम पॉजिटिव इज दैट कि आई एम एबल टू कोऑपरेट विद द ग्रुप, एंड आई एम एबल टू गेट द ग्रुप टुगेदर।
बिकॉज जब हम लोग आउटिंग में गए थे, सो आई वॉज एबल टू कन्विंस एवरीवन कि चलो इस लोकेशन पे चलते हैं, एंड आई वॉज एबल टू टेक एवरीवन टुगेदर, एंड फिर हम साथ में वापस आए। सो ये एक पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव ये था, और समथिंग दैट आई वांट टू इम्प्रूव इज दैट कि मेरे फेस पे ऑटोमेटिकली सीरियसनेस आ जाता है। सो व्हेन जब मैं यहाँ पे व्हेन आई मेट विद देम कैंडिडेट से जब मैं फ्रेंड्स बने, तो दे सेड कि यार तू तो बहुत सीरियस रहता है, बट दैट्स नॉट द थिंग। मतलब मैं सीरियस नहीं रहता, बट वो ऑटोमेटिकली मेरे फेस पे आ जाता है। सो आई हम्म। आई सेड दैट कि नहीं सर ऐसा नहीं है, बट वो नेचुरली आ जाता है, आई डोंट नो। आई थिंक इट्स ऑल ऑल्सो मेरी वॉइस भी उसमें ऐड ऑन करती है। तो वो था। एंड देन ही आस्क्ड फॉर सम सजेशंस, सो मुझे भी एक दो सजेशंस वहाँ पे दिखे थे। जैसे कि वहाँ पे वी हैड दिस मॉडल जिसमें कोई नेवल ऑफिसर था, उसका मॉडल था, एंड वेयरिंग वाइट हिज वाइट यूनिफॉर्म। सो वहाँ पे बैचेस भी थे। सो आई 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 टोल्ड द बोर्ड कि यहाँ पे बैचेस ऑफिसर्स के हैं, तो और भी जो सेलर्स हैं नेवी में उनके पे लगा सकते हैं, एंड इट वुड जस्ट गिव कैंडिडेट्स आइडिया कि अच्छा ऑफिसर के ये रैंक होते हैं, सेलर के ये रैंक होते हैं, दिखते कैसे हैं। Especially the newcomers, the freshers who don't know anything about the organization, but yes, they have this josh to come in. So it would be just add on. So they took it, and it was a very मतलब उनको अच्छा लगा ये रिव्यू। सो इट काइंड ऑफ हेल्प मी, बिकॉज मेरे ही वो फेवर में गया सजेशन। सो कभी कभी आई जस्ट ये भी एक मिथ था, आई आल्सो हैड दिस मिथ कि सजेशंस देना इज वेरी बैड, बट आई पर्सनली फील दैट इफ यू हैव सम सजेशंस जो आप 5 दिन में रहे हो, आपने ऑब्जर्व किए हैं, आपको बहुत जेन्युइन लग रहा है कि ये चीज डाल सकते हैं हम लोग, सो व्हाई नॉट गो फॉर दैट, वो चीज आप दो। सो कहीं ना कहीं वो फिर आपके फेवर में ही होगा, इफ दैट सजेशन इज वेरी जेन्युइन। तो आई थिंक सर ये सम अप किया, ये 5 दिन का प्रोसेस था, एंड आई हैड ऑल दिस स्मॉल स्मॉल इवेंट्स दैट हैपेंड एंड शेयर। Interesting. So, yeah, I mean, you understood the way why we used to do जोहारी का मैं तुम लोगों को क्यों करने के लिए बोल रहा था जोहारी विंडो का। सो यू रियलाइज दैट थिंग कि हाँ यार स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी पता रहे और वीकनेस को ओवरकम कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। दैट्स डेफिनेटली सर। व्हाई। So how does it help? Look at the man and the woman that you are in the mirror and don't lie to yourself. So it helps whenever you look into the mirror। सो कभी ना कभी तो वो स्ट्राइक होता है। इफ आई ऑल्सो ट्राइड इट कि जब भी मिरर में दिखता था, कभी ना कभी वो अंदर से थॉट आ जाता, ये चीज आई एम डूइंग रॉन्ग, अपने आप ही आता है, आई डोंट नो कैसे, बट वो चीज बहुत मैजिकल है। इफ आई मतलब व्हेन आई स्टार्टेड ट्राइंग दिस, बट वो थॉट अपने आप आता है कि अच्छा आई एम डूइंग दिस रॉन्ग एंड आई नीड टू करेक्ट दिस, मतलब मैं अपनी लाइफ में ये बहुत गलत कर रहा हूँ। सो वो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे हेल्प किया सर बहुत ज्यादा। हम्म। हम्म। ठीक है। Okay. So, generally, I make it a point that we have our assessors giving you feedback, right? Incoming officer अपना feedback देते हैं आईएसवी की टीम से, then ये वो साइकोलॉजिस्ट तो वो भी अपना फीडबैक देते हैं, मैं भी अपना फीडबैक देता हूँ क्लास में। तो आई रिमेम्बर दैट बिफोर यू लेफ्ट फॉर दी एसएसबी आई हैड टोल्ड यू दैट यू आर गोना गेट रिकमेंडेड फॉर श्योर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो उसके बाद तुम गए और जाके रिकमेंड होके आ गए, तो कैसा लगा फिर प्लस लगा के? सर जब व्हेन वी वर सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस हॉल जो हमारा था, कॉन्फ्रेंस के बाद जब कॉन्फ्रेंस था, इनफैक्ट तब मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था, बिकॉज मेरा वेटिंग टाइम अच्छा खासा चल गया था। बिकॉज हम अराउंडली 24 स्क्रीनिंग हुए थे, 24 में से जो 2 बैचेस थे स्टार्टिंग के, वो फ्रेशर्स के थे, लास्ट बैच पूरा डेडिकेटेड रिपीटर्स का ही था। हम्म। सो फ्रेशर्स में तो इतना टाइम खैर लगा नहीं, बट हमारे रिपीटर्स में भी टाइम लग रहा था कॉन्फ्रेंस में, हर एक इंडिविजुअल के टाइम। तो आई हैड दिस बैक इन माई माइंड कि नहीं, आई हैव परफॉर्म वेल, एंड अभी बस कॉन्फ्रेंस में एक अच्छे से जो कोई भी क्वेश्चंस आएंगे उसको अच्छे से टैकल करना है, काउंटर करना है, एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस प्रोसेस। सो व्हेन जब रिजल्ट का बारी आया, देन साइकोलॉजिस्ट केम इन, एंड देन हम लोग हॉल में बैठे थे। उसमें जब ही मेरा चेस्ट नंबर 19 था, सो ही अनाउंस चेस्ट नंबर 17, एंड ही सेड कि नहीं अभी एक ही रिकमेंडेशन बाकी है। तो मतलब उस समय लगा कि नहीं कोई ना कोई तो हमारे ग्रुप में से होगा, एंड आई वाज वेरी होपफुल, बट देन ही सेड 19। सो 1-2 सेकंड के लिए तो
थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगा, बट यस आफ्टर दैट आई वाज वेरी हैप्पी, वाज हैप्पी फॉर मी माय फैमिली, बिकॉज इतने साल का वो था डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इतना, एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल। सो फाइनली वो चीज़ हो गया, एंड आई एम नाउ रेडी टू मूव फॉरवर्ड एंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री, जो कुछ भी असाइन होगा टास्क उसके लिए। But before So that, it then was उसके बाद training. we had आफ्टर दैट वी हैड वेरी गुड मोमेंट, जितने भी रिकमेंडेड थे भी वहाँ पे टीजीसी के बैचेस पैरेलली रन हो रहे थे। सो मेट मेनी ऑफ देम एंड सम ऑफ देम आर नाउ इन एकेडमी, ओटीए गया में चले गए कोर्स SSC 62 कोर्स, मेड फ्रेंड्स, वी वेंट फॉर आउटिंग, मेड मेमोरीज ऑल्सो, बोथ फॉर माई SSB जो साथ में थे बंदे, एंड उसके बाद जो बंदे वहाँ पे मिले सबके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस था एंड अच्छी मेमोरीज क्रिएट की सर। Interesting. Nice. So, so what would you like to speak about this 10 days, 8 days, 10 days का जो training schedule होता है at my SSB mentoring platform? बस मैं ये बताना चाहूँगा कि I started this in 2021 and now it's 2024. जुलाई में स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट अब 3 साल होने आए हैं। बट ऑफिशियली इसको बूस्ट जो मैंने किया है वो लास्ट ईयर अक्टूबर से ही किया है। तब तक तो आई वाज जस्ट टीचिंग स्टूडेंट्स बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड आई थिंक वी हैव क्लोज टू अबाउट 144 सक्सेस स्टोरीज इफ आई वर टू काउंट पूरा 3 साल से मतलब क्या क्या चल रहा है। जो भी वर्ड ऑफ माउथ से इधर उधर से कहीं से उठा के मैंने कितने लोगों को पढ़ाया है। पहले तो सिंगल हैंडेडली पढ़ा रहा था, अब तो एकदम पूरी डेडिकेटेड टीम है मेरे पास। तो क्या लगता है आपको, व्हाट इज दिस 10 डे का स्केड्यूल, इज दिस इनफ फॉर एनीवन टू गेट रिकमेंडेड, स्पेशली उन लोगों के केस में कि जिनका थोड़ा बहुत पोटेंशियल है? सो आई थिंक यस इट इज बेनिफिशियल कमिंग, मतलब अगर पहले हम फ्रेशर का बात करें who don't know of the process, yes, maximum benefit they can avail from this 10 day जो curriculum है। कमिंग टू रिपीटर्स, यस उनको पता चल एट द एंड ऑफ दिस कोर्स दे वुड बी नोइंग, बिकॉज आप मतलब प्रोसेस में जो रिव्यू सिस्टम है आई लाइक दैट, बिकॉज पर्सनली आपका कोर्स खत्म होने के बाद यू गिव रिव्यू की यू हैव दिस ट्रेड विच यू नीड टू इम्प्रूव, एंड कमिंग साइक में भी वी गेट दिस रिव्यू, एंड इंटरव्यू में भी हमें रिव्यू मिल जाए कि you have this potential or not, or these are some things which you need to work upon. So इस टाइप के रिव्यूज मिलते हैं, एंड प्लस योर कांस्टेंट सपोर्ट एंड हीमा मैम्स आल्सो कांस्टेंट सपोर्ट, इट काइंड ऑफ हेल्प अस टू बूस्ट की अच्छा ये पता चलता है कि ये 10 days के करिकुलम का कि आई हैव दिस शॉर्ट कमिंग्स और आई डोंट हैव दिस शॉर्ट कमिंग्स बट आई हैव दिस पोटेंशियल, बस आई नीड टू मतलब जो मेरा अप्रोच करने का तरीका है दैट सपोज वो मुझे चेंज करना है। तो नोइंग अबाउट, तो ये सब चीजें हमें अगर सामने से ही पता चलेगी, बिकॉज समटाइम्स इट इट हैपेंस परसेप्शन का भी इज द रोल हियर। सो व्हेन यू गेट दिस कांस्टेंट सपोर्ट एंड कांस्टेंट रिव्यू सिस्टम, so I think that helps a lot for it has helped for me, so I think it would help for other people also who join in or who have done this courses. Okay. Thank you so much for your words, and thank you so much for your time, for giving me this opportunity to record this small podcast with you because I wanted to bring out what's the change that you saw within you after you took the course and then immediately you got recommended. So I also wanted to understand your perspective. गोइंग फॉरवर्ड, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि एज मेनी रिकमेंडेड स्टूडेंट्स जो जो मेरे आते जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, आई एम गोना कीप रिकॉर्डिंग देयर सक्सेस स्टोरीज एंड पुटिंग देम अप ऑन माय यूट्यूब चैनल SSB with ISV. सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड देयर इज वन मोर चैनल दैट आई रन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉजर दैट विद NKC, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की कहानी है XGTO की जुबानी। उसको भी देखें, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में, अपने सोशल ग्रुप्स में इसको फैलाएं ताकि आपके दिमाग में छुपे हुए वो सारे मिथ्स जो है वो एक झटके में टूटे और आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये मिलिट्री लीडरशिप, यंग मिलिट्री लीडरशिप क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सागा ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। थैंक यू सो मच। शानो वरुणा, जय हिंद।